اس وقت دنیا میں 8 ارب لوگ ہیں جناب والا، 8 ارب لوگ اس وقت ہیں دنیا میں. کتنے لوگ ہیں اس وقت؟ 8 ارب لوگ. ذرا سب کے چہرے تو دیکھو، ذرا پہلے مجھے دیکھو. سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اللہ نے بنایا. پھر مولانا احسان کو دیکھو، پھر جناب والا ہمارے صدر اجلاس کو دیکھو، پھر جناب انہیں دیکھو ناظم اجلاس کو، مفتی زبیر عالم نعیمی کو دیکھو، دیکھتے ہی رہ جاؤ. اسناد رضا کو دیکھتے ہی رہ جاؤ. کیا چوڑی پیشانی ہے، کیا سبحان اللہ جھیلوں جیسی آنکھیں ہیں. اللہ اکبر. دیکھو یہ اٹھے ہوئے رخسار، اللہ اللہ، اور پھر یہ کمال کی مسکراہٹ. ہر ایک کی الگ الگ ہے، تمہاری الگ، ان کی الگ. کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، ہر طرح کا ہے، مگر جتنے بھی ہیں سب خوبصورت ہیں. سبحان اللہ، کوئی بدصورت نہیں. میرا اللہ فرماتا ہے ہمیں انجیر کی قسم، ہمیں زیتون کی قسم، ہم نے انسان کو بہترین قد و قامت میں پیدا فرمایا. کیا سب خوبصورت ہیں، سب الگ الگ ہیں اور سب خوبصورت ہیں. یہ فرشتے کا علم دیکھو، مجھ جیسا تمہارے بیچ میں کوئی نہیں، تم جیسا میں نہیں. حضرات تلوار والا آدمی فتح پور کی طرح نہیں، اوبری والا سینتلی والے کی طرح نہیں ہے، اور یہ مچھائلی کے زبیر حسانی کی طرح. جناب والا مچھائلی کا زبیر حسانی اور جناب والا یہ شہباز پور کا ایک ساتھ. دونوں میں کوئی جناب والا کوئی تال میل نہیں ہے، سب کی صورتیں الگ الگ ہیں. پھر اس پہ کمال دیکھو. آدھار کارڈ والوں کو تو آج پتہ چلا ہے، ان آدھار کارڈ والوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا. سب سو رہے تھے مگر آدھار کارڈ والوں کو آج پتہ چلا ہے. مگر سلسلہ تب سے ہے جب سے بابا آئے ہیں دھرتی کے پردے پر. کیا سلسلہ ہے؟ ہر ایک کی انگلیاں الگ الگ ہیں، فنگر پرنٹ الگ الگ ہیں. کمال دیکھو، علم دیکھو، ان فرشتوں کا علم دیکھو. تمہارا فنگر پرنٹ الگ ہے، میرا الگ ہے. پوری دنیا کے 8 ارب لوگ اور 8 ارب لوگوں کے 16 ارب انگوٹھے اور سب کے الگ الگ. ارے وہ لوگوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایسا علم کلپنا بھی نہیں کر سکتے. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب جناب والا فرشتوں کا علم اتنا ہے تو مدینے والے آمنہ کے لال کا علم کتنا ہوگا. بادلوں کا فرشتہ ہو یا ہواؤں کا روح نکالنے والا فرشتہ ہو یا روح ڈالنے والا فرشتہ، کوئی سا بھی فرشتہ ہو، خدا کی قسم ہر فرشتہ نبی کا غلام ہے. ہر فرشتہ. ارے جب غلاموں کا علم ایسا ہے تو ان غلاموں کے بوس کا علم کیسا ہوگا؟ جب غلاموں کا ایسا تو مکھیا کا کیسا؟ جب غلام کا ایسا تو ہیڈ کا کیسا علم ہوگا؟ یہ مصطفیٰ ہے، ہیڈ ہے زمانے کا، بوس ہے دنیا کا. آپ کے کہہ دو سبحان اللہ. حضرات تم مصطفیٰ کے علم کی باتیں کرتے ہو، یہ ناپیں گے. 15ویں صدی میں آئے ہیں، کھانے کی تمیز نہیں ہے، پینے کے سلیقے نہیں ہے. ابے تم ناپو گے، ناپتے ناپتے خود نپ جاؤ گے مگر مصطفیٰ کے علم کو ناپ نہیں پاؤ گے، پاور کو ناپ نہیں پاؤ گے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، بات بڑھانا نہیں چاہتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب فرشتوں اللہ عز و جل نے علم کمپلسری تھا فرشتوں کو عطا کیا. پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لا کر دور سے کہہ دو سبحان اللہ. بہت مختصر میں جناب والا میں اس دھرتی کے پردے پہ آنا چاہتا ہوں. اللہ نے آدم کو پیدا کر دیا، تمہارے میرے ابا کو پیدا کر دیا. جانتے ہو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے حضرت آدم کے ساتھ کیا بھی ہے میری کیا؟ جانتے ہو؟ بیٹھ جا بیٹے بیٹھ جا. 10 منٹ اور لوں گا، کوئی ٹینشن تو نہیں ہے. اور ایک کیا جلسہ ہے، کیا شان کا جلسہ ہے، کیا برکت آنکھوں سے دکھائی دے رہی ہے. دور دور تک ٹوپیوں کی بہاریں ہیں اور ماتھوں سے اٹھتی تقدس کی لہریں ہیں. سبحان اللہ. جناب والا کانفرنس کی برکتوں اور کانفرنس میں اترنے والی خیر اور رحمتوں کو آنکھوں سے دکھا رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ تمہارا سایہ دیر تک رکھے، تمہارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. ارے سنبل سے ہی ماشاءاللہ، اللہ آواز رکھے. بہت جوشیلے ہو اور یہ جوش بھی ضروری ہے. خوش رہو، آباد رہو. بہت زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتا، یہ کھڑے ہیں. توجہ ہے؟ ارے ہے توجہ. ایک ایک لفظ پکڑتے ہیں. فرشتوں کو اتنا علم
تو جناب والا اب بابا آدم آ گئے، اللہ نے علم دیا تو اللہ نے ہر چیز کا نام سکھا دیا، اسما کا علم دے دیا، مسمیات کا علم دے دیا، ارشاد فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے تمام اسما کا علم عطا فرما دیا جناب والا۔ پھر اللہ نے ان اسما کو فرشتوں سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ، تو فرشتے بولے سبحانک لا علم لنا، ہمیں نہیں معلوم۔ سبحان، زور سے زور سے، ارے اتنے علم والے فرشتے بابا آدم کے علم کے سامنے کہتے لا علم لنا، نہیں معلوم۔ اس کا مطلب بابا آدم کا علم زیادہ بڑا ہے، تو کیونکہ فرشتے کے اور کتنا علم ہے ان کے پاس، دیکھو فرشتوں کے پاس، مگر بابا آدم کے سامنے کہتے ہیں سبحانک لا علم لنا، لا علم لنا، ہمیں کوئی نالج نہیں ہے۔ حضرات محترم غور کیا تو کتنا علم دیا؟ ایک روایت میں آتا ہے 6 لاکھ یا 7 لاکھ بھاشاؤں کا علم دیا اللہ نے بابا آدم کو۔ تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 2462 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اب ذرا جناب والا مختصر میں نیچے آؤں، آدم گندم کا دانہ کھا لیتے ہیں، آ جاتے ہیں دھرتی کے پردے پر، تشریف لے آئی زمین پر۔ جب بابا آدم آئے تو اللہ نے حضرت آدم کو جناب کرشی کا علم دیا، کرشی کا گیان، کسانی کا علم، فارمر، ایگریکلچر کا ایکسپرٹ بنا ڈالا۔ کون سی زمین اول ہے، کون سی زمین دوم ہے، کون سی بھوڑ ہے، جناب والا یہ سارے بھوڑوں کا علم حضرت آدم کو، اول دوم کا علم حضرت آدم کو، کون سی زمین میں دانہ اگے گا، کون سی میں دانہ نہیں اگے گا، حضرت آدم کو سب علم دے دیا گیا۔ حل کیسے چلے گا، زمین کیسے کھدے گی، نرائی کیسے ہوگی، بٹائی کیسے ہوگی، بوائی کیسے ہوگی، ارے تم ہی جانتے ہو۔ بابا آدم کو اللہ نے ایگریکلچر کا ایکسپرٹ بنایا، پھر اللہ نے ان کے بعد حضرت نوح کو بھیجا دھرتی کے پردے پہ، تو اللہ نے ایسا علم انہیں دیا، ایسا علم انہیں دیا کہ آج کے سائنس والے دانت تلے انگلی دبائے پڑے ہیں۔ اس زمانے میں انہوں نے اتنی لمبی چوڑی کشتی بنا ڈالی تھی، جس زمانے میں کشتی بنانے کا تصور بھی نہیں تھا، اس کشتی کا کچھ حصہ ترکیے کے پہاڑوں پہ سائنس والوں کو ملا ہے، تو سائنس والے حیران ہیں کہ اس زمانے میں اتنی بڑی کشتی کیسے بن گئی۔ یہ وہ علم تھا جو اللہ نے حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کو دیا۔ ذرا تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت داؤد کو میرا اللہ فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلمناہ الصنعۃ لبوس لکم، اللہ نے حضرت داؤد کو ٹیکنالوجی کا علم دیا۔ ذرا تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ اپنے ہاتھوں سے جناب والا لوہا پگھلا لیتے تھے، انہیں نہ بھٹی کی ضرورت، نہ بھٹی کی ضرورت، نہ بھٹے کی ضرورت، ہاتھوں میں جناب والا لوہا لیتے تھے اور یوں بٹ دیا تو سریا بنا دیتے تھے، اور یوں انگلیوں سے گھما دیا تو اینگل بن جاتا تھا۔ یہ علم تھا جو اللہ نے حضرت داؤد کو دیا تھا۔ پھر اور آگے بڑھو، اللہ نے حضرت یوسف کو علم ایسا دیا تھا کہ تم رات کو چاہے جو بھی خواب دیکھ لو، ایک بار اللہ کے محبوب کے سامنے، حضرت یوسف کے سامنے اس کا ذکر کر دو تو حضرت یوسف اس کا ٹارگٹ بتا دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے ایسا علم دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ تو یہاں تک بتا دیا کرتے تھے کہ تم نے رات کو کھانا کون سا کھایا تھا، تم نے رات کو کیسا کھانا کھایا تھا۔ تفسیر میں لکھا ہے ان سے چھوٹے چھوٹے بچے پوچھنے آتے تھے کہ ہماری ماں نے مٹھائی کدھر رکھی ہے، تو حضرت عیسیٰ کو یہ پتا تھا کہ ان کے گھر میں مٹھائی کون سے کونے میں رکھی ہوئی ہے، تو حضرت عیسیٰ یہ بتاتے تھے کہ تمہاری امی نے تمہارے گھر کے فلاں کونے میں ایک ڈبہ رکھا ہے، یا ایک ہانڈی ٹائپ ایک مٹی کی ایک چیز رکھی ہے، اس کے اندر ایک باکس اور پوٹلی بندی ہوئی ہے، اس پوٹلی میں ایک پوٹلی اور ہے، اور اس پوٹلی میں پھر ایک پوٹلی اور ہے، اور اس پوٹلی میں مٹھائی رکھی ہوئی ہے۔ بچہ وہاں سنتا، سیدھا نشانے پہ جاتا، سیدھ لگاتا، نشانے پہ جاتا، ناک کی راہ سیدھا گیا اسی کونے پہ، اور اس کونے پہ جا کے پوٹلی میں پوٹلی میں سے پوٹلی نکال لیتا، اور جناب والا مٹھائی اس کے سامنے ہنستی کھیلتی آ جاتی، تو جناب والا اس کے منہ میں پانی آ جاتا، مٹھائی کو چٹ کر جاتا، منہ صاف کرتا، پھر کھیلنے کی راہ پہ نکل جاتا۔ شام کو آتا، ماں کو ضرورت پڑتی مٹھائی کی، مٹھائی ندارت، کونے میں مٹھائی ہے ہی نہیں، بچے سے پوچھتی، بچہ من کا سچا، جناب والا وہ جھوٹ تھوڑی بولتا ہے، ماں پوچھتی مٹھائی کہاں ہے، کہ ماں مٹھائی تو ہمارے ہاتھ لگ گئی تھی اور وہ مٹھائی ہم نے کھا لی، اور اتنی چھپا کر رکھی، تم کو کس نے خبر دی؟ کہا بابا نے بتایا تھا۔ بابا بڑے بھولے تھے، بڑے سیدھے تھے، بڑے سمپل تھے، محلے بھر کی عورتیں پہنچ گئی ان کے پاس کہ سرکار سب کچھ بتایا کرو مگر اتنا تو نہ بتایا کرو۔ حضرت محترم بابا بولے اب نہیں بتائیں گے، قرآن کہتا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ حضرت محترم اتنا علم ان کے پاس تھا، اور رہی بات میرے نبی کی، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت
रही बात मेरे नबी की, जोर है और तड़प के सुभान अल्लाह, तो वहाँ ये मत पूछो इल्म क्या दिया था, वहाँ तो ये पूछो कि जब वो आए हैं तो इल्म फैलाया किसकी वजह से था। ये मत पूछो कि इल्म कितना था, ये पूछो इल्म फैला क्यों है, इल्म कॉमन कैसे हुआ है, इल्म जनरल कैसे हुआ है, ये ज्ञान फैला कैसे, ये जनाबे वाला जानकारी फैली कैसे, ये इल्म फैला कैसे, ये इल्म का बिखराव हुआ कैसे, ये पूछो। हजरात मोहतरम मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो, बाआवाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह, मजा आ जाएगा, ईमान भी ताजा होगा और शायद खुश्क मौजू होकर यहाँ तुम्हें तर और गीला लगने लगेगा। ये एक बात बड़े पते की है, 400 पेज की किताब है, 1 मिनट में सुनाना चाहता हूँ। 400 पेज की किताब, जिगर देखो मेरा कि 400 पेज की किताब मैंने पढ़ी और 1 मिनट में तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। दिल चाहिए, जिगर चाहिए 400 पेज की किताब को 1 जुमले 2 जुमलों में नोट करने के लिए, मगर मैं जनाबे वाला नोट करता हूँ। 400 पेज की किताब 1 मिनट में तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब तक नबी नहीं आए थे दुनिया के पर्दे पे, अल्लाह ने इल्म को फैलाया ही नहीं था। यही वजह है कि नबी के आने से पहले कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, नबी के आने से पहले कोई कार नहीं थी, नबी के आने से पहले किसी को ये नहीं मालूम था कि इस जमीन में डीजल निकल जाता है या पेट्रोल निकल जाता है। अरे हवाई जहाज चलाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, न ट्रेन, न प्लेन, न हवाई जहाज, न जनाबे वाला पानी का जहाज। हजरत मोहतरम न डीजल, न पेट्रोल, न बुर्ज खलीफा, न 50 मंजिला इमारतों का सपना, न जनाबे वाला ओवर फिलाई कि इधर भी पुल है, उधर भी पुल है और उधर भी पुल है। नबी से पहले कोई जनाबे वाला ओवर फिलाई नहीं, नबी से पहले कोई स्कूल नहीं, नबी से पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं, नबी से पहले कोई कॉलेज नहीं, नबी से पहले हजरत वहाँ कोई कॉलेज नहीं। पहला कॉलेज दुनिया के पर्दे पे 1088 में इटली में बना है, पहली यूनिवर्सिटी 1088 में इटली की जमीन में बनी है और फिर 1088 के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जन्म लिया है। तो फिर जनाबे वाला 1088 से पहले धरती के पर्दे पे क्या था, तो मैं बताना चाहता हूँ क्या था। नबी आए हैं 570 के बाद, तो 570 से 1088 के बीच में जब कोई कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, आज लोग शिक्षा 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 की बातें करते हैं। शिक्षा शिक्षाइयों से पूछना चाहता हूँ, अरे ओ शिक्षाइयों, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लफ्ज भी तुमने पहली बार ही सुना होगा, शिक्षाइयों। इससे पहले लफ्ज़ शिक्षाई किसी से नहीं सुना होगा, मगर मैं कह रहा हूँ वो जो हर वक्त शिक्षा 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 और ज्ञान की बातें करते हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ, जब 1088 में पहला कॉलेज बनता है तो फिर उससे पहले क्या था, उससे पहले क्या था, क्या था उससे पहले। अरे तुम इस गूगल पे सर्च कर लो फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन दिस वर्ल्ड, तो कहेगा इटली में 1088 में। तुम कह लो फर्स्ट कॉलेज इन दिस वर्ल्ड, तो ये कहेगा 1088 में इटली में। हमने पूछा ऑक्सफोर्ड कब, ओ व्हेन एस्टैब्लिश्ड, कब इस्टेब्लिश की गई, तो कहेगा कि 1090 के बाद। मैं पूछना चाहता हूँ ये नबी के बीच में और इस कॉलेज के बीच में 500 साल का पीरियड है, क्या था उसमें, तो मैं जवाब दूंगा या मौलाना एहसान से पूछ के देख लो। और अगर इनसे जरा हया आती हो और इनसे जरा डर लगता हो तो फिर सैयद नदीर से पूछ लो, और सैयद नदीर से भी अगर तुम अदब के मारे पूछ ना सको तो मौलाना असनाद तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। इनसे पूछो तो ये बताएंगे उस 500 साल के पीरियड में स्कूल तो थे नहीं, कॉलेज थे नहीं, तो फिर जगह जगह मदरसे फैले हुए थे। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। क्या फैला हुआ था, मदरसों का एक जाल था, यहाँ आलिम भी बनते थे और यहाँ दुनिया के इल्म के माहिर भी बनते थे। से कहो सुभान अल्लाह। देखो कॉलेज बनने से पहले एक आदमी आता है, उसका नाम क्या था, उसका नाम था इब्ने फरनास। ये मदरसों का था, ये मदरसे में पढ़ा था। पढ़ते 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 से क्या सूझी, बोला मैं तो पंख लगाऊंगा अपने जिस्म में, और पंख लगा ली, इतने बड़े बड़े पंख बना लिए लोहे के। इब्ने फरनास नाम था इसका, किसी को पता भी नहीं था कि हवाई जहाज का भी उड़ सकते हैं, मगर हवाई जहाज का मॉडल वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बनने से पहले दुनिया को दे गया। उसे एक दिन से चढ़ गई, मैं तो उड़ूंगा, मैं तो उड़ूंगा। अबे तू कैसे उड़ेगा, तू क्या इंसान है, तू उड़ कैसे जाएगा। मगर मदरसे का था, और मदरसे के बच्चों को तो जनाबे वाला जिधर तवज्जो हो जाए, खुदा की कसम मदरसे के बच्चे के सर पे जो चढ़ जाए
चढ़ गई सर पे, मैं तो उड़ूंगा। अब मेरा यकीन ना करो तुम ये गूगल पे देख लियो, इतने लंबे लंबे उसने पंख बना डाले और पंख बना के जनाबे वाला दोनों तरफ पंख बांध लिए, इधर भी बांध लिया और इधर भी बांधे थे, चील के वो होते हैं पंख, ऐसे ही बांध लिया और बांध के एक छत पे चढ़ गया। और जनाब दुनिया हैरान, नीचे सब तमाशाई कि मरेगा मरेगा तो कहाँ जा रहा है। और उसने जनाब वाला क्या काम किया, छत से छलांग लगा दी, वो तो नीचे गिरा ही नहीं, वो उड़ने लगा सुभान अल्लाह। और फिर वो उड़ते उड़ते आकर नीचे को आ गया। क्या नाम था? अब्दुल्ला इब्न फरनास नाम था। ये किसी कॉलेज का नहीं था, एक मदरसे का सबूत था जनाब वाला। सबसे पहले हवाई जहाज का मॉडल गूगल पे लिखा है, सबसे पहले किसने दिया? मदरसे के बच्चे ने। ये सिरिंज इंजेक्शन लगाते हो तुम, इंजेक्शन सिरिंज जिसे बोलते हैं, सिरिंज जिसमें इंजेक्शन भरा जाता, बड़ा डर लगता है ना इंजेक्शन से। बड़े बड़े बहादुर कांप जाते हैं इंजेक्शन के मारे, बड़े 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 बहादुरों को पसीना आ जाता है। जैसे ही डॉक्टर साहब जंटमाइसिन की शीशी निकाल, जंटम डॉक्टर साहब भी तो बोला के हैं। एक घंटा थोड़े निकालते, फिर घंटा भी निकालते हैं आप, कई कई निकालते हैं जैसे लगे कि हाँ बहुत जनाब वाला बड़ी बड़ी तशवीश में है, बड़ी गहरी बीमारी है, कई कई इंजेक्शन लगाएंगे साहब। मगर इन्हें क्या मालूम कि ये कई कई दिखा के इनको सीधा कर रहे हैं। डी फॉर डॉक्टर। अल्लाह अपनी पनाह में रखे, अगला जुमला नहीं बोलता। मगर जनाबे वाला डॉक्टर साहब को देखें तो ये जब सिरिंज जब अच्छे अच्छे को पसीना आ जाता है, अजी मुंह ऐसा कर लेंगे जैसे मर जाएंगे ये इंजेक्शन में। तो वो सिरिंज जो होती है जानते हो किसने बनाई थी? और मॉडर्न सर्जरी का बानी और मॉडर्न सर्जरी के उमूर का जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सर्जरी के जितने भी जनाबे वाला औजार हैं, इन औजारों को जानते हो किसने बनाया और किसने मॉडल दिया? उसका नाम है अबुल कासिम ज़हरावी। उससे कहो सुभान अल्लाह। कहाँ से आया? किसी कॉलेज से आया? नो कॉलेज तो था ही नहीं, यूनिवर्सिटी थी ही नहीं, तो फिर ये आया कहाँ से? ये जनाबे वाला मदरसे में से आया। मदरसे खुले हुए थे जगह जगह, मदरसे बिरानचदी मुस्तफा के मदरसे की, क्योंकि पहले मदरसे का तसव्वुर जन्नत से मिला है। जब अल्लाह ने पढ़ाया बाबा आदम को, पढ़ाने वाला अल्लाह, पढ़ने वाले अब्बा। मदरसे का तसव्वुर जन्नत से। जनाबे वाला चूंकि मदरसा जन्नती चीज है, इसीलिए तो नहीं खुद पाएंगे इसकी जाने, चाहे कितनी खुद। अगर बात जनाब जोए की होती, बात अमरोहे की होती, बात मुरादाबाद की होती, तो अब तक तो जरा कब की खुद गई होती, जन्नत से है। अरे शजरा नसब बहुत पुराना है, जन्नत से मिलता है, इसीलिए इनका खुर्शीद इकबाल क़यामत तक चमकता ही रहेगा। दुनिया की ताकतें इन्हें नेस्तो नाबूद कर ही नहीं पाएंगी। फिर इस धरती के पर्दे पे सबसे पहला मदरसा अगर किसी ने बनाया है तो जानते हो किसने बनाया? दुनिया के सबसे बड़े सूरमा ने, दुनिया के सबसे बड़े मास्टर और सबसे बड़े डॉक्टर ने, दुनिया के सबसे बड़े इंटेलिजेंट और दुनिया के सबसे बड़े जीरक दाना और बीना ने, दुनिया में सबसे ज्यादा इल्म वाला और दुनिया में सबसे ज्यादा फजल वाला अगर कोई आया है तो मक्के और मदीने वाला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुनिया के पर्दे पे इंटेलिजेंट इकलौता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरी दुनिया में इकलौता होनहार बन के तशरीफ लाया उसने जनाबे वाला। तुम कहते हो मदरसे मदरसे मदरसे, मदरसे नबी बनाते हैं, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और नबी कौन है जानते हो? नबी कौन है? नबी आज भी मेडिकल दुनिया के बड़े बड़े सूरमा यूं दामन फैलाए हुजूर के सामने भीख मांग रहे हैं। मुस्तफा जान अहमद की हिस्ट्री तुम ही तो नहीं पढ़ते उनकी हिस्ट्री, मगर जमाना पढ़ता है उनकी हिस्ट्री, तुम नहीं पढ़ते। तुम्हें तो फेसबुकिया से ही फुर्सत नहीं है, तुम्हें तो सोशल मीडिया से ही फुर्सत नहीं है, और सोशल मीडिया पे भी जिसे चाहा उसे सुन लिया, जिसे चाहा उसे सुन लिया। एक क्लिक में ईमान जाता है। यहाँ बड़ा गहबड़ा रंग बिरंगी बाजार है, यहाँ एक से एक डुगडुगी वाला बैठा हुआ है, यहाँ मदारी है डुगडुगी बजा रहे हैं। एक क्लिक मारा और पता चला डुगडुगी वाले ने नाग बैठे हैं यूं फन उठाए हुए,
ایسے ہی کلک کیا اور ناگ نے اپنا کام کیا، ایمان ڈسا، پانی تک نہیں ملا۔ انجینئر اس کی ہمت ہے یہ قرآن کی تفسیر کرے گا، ماسٹر صاحب کریں گے، ڈاکٹر صاحب کریں گے، انجینئر صاحب کریں گے قرآن کی تفسیر۔ ارے یہ ٹائی لگا کے جناب والا کوٹ پینٹ پہن کے یہ قرآن کی تفسیر کرے گا، یہ کلین شیو، اسے کیا معلوم قرآن کا کیا راز ہے، حدیث کے کیا اسرار ہے، یہ جانے گا۔ اور قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے تلوار والوں، آس پاس والوں، شہباز پور والوں اور جناب کلمہ پڑھنے والوں اور کلمہ نہ پڑھنے والوں، یاد رکھنا قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے امام راضی جیسا علم چاہیے، امام غزالی جیسا تصوف چاہیے اور امام احمد رضا جیسا عشق رسول چاہیے۔ جب یہ تینوں چیزیں جمع ہوتی ہے تو قرآن کی تفسیر ہوتی ہے۔ ایک انگریزی کے جملے پہ مرتے ہو جوانو، اللہ سیز ان ہولی قرآن، اللہ سیز ان ہولی قرآن، اور دے دی جان۔ واہ، انگریزی بولنا ہے، بڑا قابل ہے، بڑا ماہر ہے، اللہ سیز ان ہولی قرآن، ایک ہی جملے پہ دے دی جان۔ توجہ ہے؟ اور بس بہت قابل ہے، وہ اس کو ضرور سنو، نہیں سننا۔ میں عمران حنفی اپنے ان ذمہ دار وفا شیار اپنے سر کے تاجوں سے، تاجوں کی موجودگی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مت سنو سب کو سوشل میڈیا پہ، اگر سننا ہی ہے تو کسی سنی عالم سے پوچھ کے اسے سنے یا نہ سنے۔ ایمان بچاؤ، ایمان بچ گیا سمجھو سب کچھ بچ گیا، بے شک ایمان نہیں بچا کچھ نہیں بچا۔ اور خاص طور سے ان نوٹنکی باتوں کو جو ہنسی ہنسی میں کبھی اللہ کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں، کبھی نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور پھر ہنسی آتی ہے تمہیں، کامیڈی لگتی ہے تمہیں، مگر جانتے ہو کامیڈی میں کام ہو جاتا ہے، کہنے والے کا بھی ہو جاتا ہے اور سننے والے کا بھی ہو جاتا ہے، مذاق میں گیا اور کام ختم ہو گیا۔ اٹھ کر لو، ذرا ہوشیار رہو، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ میں جناب والا کہنا چاہتا تھا، مدرسہ سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ اور دنیا کے سب سے بڑے سورما نے مکے کی زمین پر پہلا مدرسہ بنایا۔ کہاں بنایا؟ ارقم کے گھر میں بنایا، ارقم کے گھر میں، حضرت ارقم کے گھر میں، مدینے والے مکے والے محمد رسول اللہ نے مدرسہ بنایا۔ میں مدرسہ بناتا ہوں یا سلیمان بناتے ہیں، اسنان مولانا بناتے ہیں یا مولانا جناب والا عبدالفقار بناتے ہیں؟ ارے ہماری کیا بساتیں ہیں۔ اس دھرتی کے پردے پر پہلا مدرسہ اگر کسی نے بنایا ہے تو مکے کے محمد رسول اللہ نے بنایا ہے۔ اب جب آپ جناب والا ضرورت ہوگی، کوئی بات ہوگی، کوئی میننگ فل ہو، کوئی مسئلہ کوئی مسئلہ ہوگا، تبھی تو اتنی بڑی ہستی نے جناب والا مدرسہ بنایا ہوگا۔ اس کا مطلب مدرسہ بڑا ضروری ہے، جنت سے آئے دھرتی کے پردے پر مصطفیٰ نے بنایا۔ پھر یہاں پہ بات تمام نہیں ہوئی، اب مجھے ایسا لگ رہا ہے دادیں آنکھیں ڈھونڈ رہی ہیں اسد اقبال صاحب کو، اس لیے جناب میں آخری جملہ بول کے جا رہا ہوں۔ 1 بج رہا ہے، یوں تو میں سناتا رہوں گا تو میں اپنے علاقے کی کیا، ان علاقوں کی تو جناب والا میں گواہی دوں گا۔ میں تو باہر کے لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں، الحمدللہ وہ کافی دیر تک سنتے رہتے ہیں، اور علاقے والے تو بہت محبت کرتے ہیں۔ حضرات میں اگر تمہیں صبح تک سناتا رہوں گا تو یقیناً تم سنتے رہو گے۔ یہ مجھے ارے سن لو گے یا ایسے سری لا رہے ہو؟ تو پھر اسد بھائی کو کب سنو گے؟ فجر کے بعد؟ چلو ٹھیک ہے، مگر چلو یہ فیصلہ میں کر دیتا ہوں، 5 منٹ ابھی میں اور لوں گا، اور 5 منٹ کے بعد اسد اقبال بھائی۔ میں جناب بولتے بولتے دیکھو ادھر تھوڑا آؤٹ لائن ہوں، میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ تم نبی کے علم کی باتیں کر رہے ہو، وہاں تو یہ پوچھو کہ علم پھیلا کیوں؟ واہ واہ واہ۔ تو جناب والی یہ آخری بات، علم نبی سے پہلے علم پھیلا ہوا تھا نہیں، نبیوں کے پاس تھا مگر جنتا کے پاس نہیں تھا۔ ہوتا تو وہ بھی فارچونر بنا لیتی، مائک بنا لیتی، موبائلیہ بنا لیتی، کچھ بنا پائی جنتا؟ بجلی بنا لیتی؟ کوئی جنتا بنا پائی بجلی؟ نہیں نا، بیویوں میں ہی بیٹھی رہ گئی، بیبیا جلا لی اور ڈبیا میں بیٹھا بیٹھا گھوم رہا مڑھیا میں، بجلی بنا ہی نہیں پایا، کیونکہ علم ہوتا مجھ بجلی کے لیے، اور اللہ نے علم پھیلایا نہیں۔ ارے جس اللہ نے آج آدمی کو علم دے دیا بجلی ایسے بنا لو، کیا وہ کل نہیں دے سکتا تھا؟ مگر نبی سے پہلے کیوں نہیں دیا؟ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سے بہت طرف کے اگر تمہاری سمجھ میں آ جائے تو
سبحان اللہ. نبی سے پہلے علم کا اجالا پھیلایا کیوں نہیں اللہ نے؟ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ ابھی میں علم کا اجالا زمانے کے پردے پہ عام نہیں کروں گا. اس کی مشیت یہ تھی پہلے زمین کے پردے پہ میرے محبوب آئے گا. پہلے محبوب پھر کرانتی، پہلے محبوب پھر باہر، پہلے محبوب پھر انقلاب، پہلے محبوب پھر ریولیوشن. یہی وجہ 12 ربیع الاول کو نبی آئے، 40 برس کی عمر میں قرآن آیا، اور جیسے ہی قرآن آیا اللہ نے فوراً فرمایا آج ہم نے اللہ والانسان والذی عالم، آج مانو سماج میں ہم نے علم کا اجالا پھیلا دیا ہے، پاون کر دیا ہے. نبی کے آنے کے بعد، قرآن کے آنے کے بعد اللہ کی قسم دنیا میں علم کا اجالا پھیلا. تبھی تو وہ دیکھو جیمز واٹ نکما واہ واہ واہ. کوئلہ دیکھ کر ریل کا انجن بنا رہا ہے، مارکونی کو دیکھو ریڈیائی لہروں کو گرفتار کر رہا ہے. اور یہ دیکھو پورا زمانہ کہہ رہا تھا نبی سے پہلے ہواؤں کو نہیں پکڑا جا سکتا، ہواؤں کو نہیں پکڑا جا سکتا. سب کہہ رہے تھے ہواؤں کو نہیں پکڑا، 12 پھٹ کا کہہ رہا تھا ہواؤں کو نہیں پکڑ سکتے، ہواؤں کو نہیں پکڑ سکتے. اور نبی کے بعد 5 پھٹکے نے، 5.5 پھٹکے نے ہواؤں کو پکڑ پکڑ کے اپولو اور MRF کے ٹائر میں بند کر دیا، اور اتنی کرری ڈاٹ لگا دی کہ ہوا کو نکلنے کا بائی پاس تک نہیں ملا. یہ کمال ہے علم کا جو پھیلا ہے نبی کے بعد. یہ کمال ہے علم کا جو پھیلا ہے نبی کے آنے کے بعد. نبی کے آنے سے پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا کہ زمین میں پیٹرول ہے، زمین میں ڈیزل ہے. نبی کے بعد پتہ چلا. نبی سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ہوائی جہاز اڑایا جا سکتا. نبی کے بعد پتہ چلا. نبی سے پہلے کوئی نہیں جانتا ٹرین چلائی جا سکتی ہے. نبی کے بعد پتہ چلا. نبی پاک سے پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا اوپر پھرائی بنا لو، برج خلیفہ بنا لو، 30 منزلہ عمارت بنا لو غازی آباد میں، نوئیڈا میں، سیکٹر 36 میں. توجہ ہے، یہ نبی کے بعد پتہ چلا. کمال ہے اس علم کا جو پھیلا نبی کے بعد. ذرا غور سے کہو اللہ نے علم دیا سارے نبیوں کو اور علم پھیلایا پوری جنتا میں مصطفیٰ کی وجہ سے. تو مصطفیٰ کے علم کا تو تم اندازہ ہی نہیں لگا. مکہ میں مدرسہ، مدینے میں مدرسہ، اب اسی کی طرز پہ چلتے ہوئے نبی کے غلاموں نے جگہ جگہ مدرسے بنا لیے. اور انہی مدرسوں میں ایک گلشن یہاں کھڑا ہے مولانا سلیمان ان 4 یاروں کا. سبحان اللہ. میرے پاس وقت کی اجازت نہیں ہے، اب وقت کی قلت دامنگیر نہیں جی بلکہ وقت کی قلت اب گردنگیر ہوئی جا رہی ہے. اس لیے اب میں اپنی بات کو جناب والا، ہاں دامنگیر سے اب گردنگیر تک آ گئی. تو وقت کی قلت دامنگیر ہے، اب دامنگیر نہیں ہے، ایک بج رہا اب گردنگیر ہے. اس لیے میں اپنے پوائنٹ کو یہاں تشنا چھوڑتا ہوں پیاسا. مگر کیا بات ہے یار، میں نے بڑی خشک تقریر کر دی اور ایسا سن لی تم نے. مزہ آ گیا، مزہ آ گیا. واہ، جب تم نے کہہ دیا مزہ آ گیا تو میرا سینہ، کیا بات ہے. سبحان اللہ. اللہ ہماری عمر میں برکت کرے. تم نے بہت پیار دیا. اپنے بچے کو سکھاؤ تیرنا، اپنے بچوں کو سکھاؤ گھوڑے پہ چڑھنا یعنی سواری کرنا، گھوڑ سواری کرنا، ورکوب الخیل اور ورمایت ورکوب الخیل. اور اپنے بچوں کو سکھاؤ تیر اندازی. جناب والا یہ 3 چیزیں ہیں. سرکار نے فرمایا تیرنا سکھاؤ، تیراکی، تیر اندازی اور گھڑ سواری. ان میں سے کون سی بات ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں؟ جناب والا کوئی بھی بات تو نہیں. اس حدیث کا مطلب یہی نہیں ہے کہ گھڑ سواری سکھائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں آپ جیو اس زمانے کے اعتبار سے اس وقت کی سواریوں کا چلن جو بھی ہو ان کو سکھاؤ. یعنی ان کو ڈرائیونگ سکھاؤ، ان کو جناب والا ان کو ڈرائیونگ سکھاؤ، ان کو زمانے بھر کی جو سواریاں ہوں ان سواریوں کو چلانے کے طور طریقے سکھاؤ. اور پھر اتنا ہی نہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے والرمایت ورکوب الخیل، والرمایت، ان الفاظ کی تشریح میں اگر آپ جائیں گے تو سیدھا سیدھا ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. جملہ سرکار کا یہ ہے کہ جس زمانے میں جیو اس زمانے کے چال چلن کو اور اس زمانے کے علوم کو اپنے سینوں سے لگاؤ. بے شک. سبحان اللہ. جس زمانے میں سانسیں لو، کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟
जिस जमाने में सांसें लो, उस जमाने के तौर तरीकों, चाल चलन और उस जमाने के उलूम जो उस जमाने में राइज हों, वो अपने बच्चों को पढ़ाया करो। तो जनाब वाला, हम इस हदीस पाक पर कितना अमल करते हैं, हम खुद अपने गिरबानों में झांक के देखें। एक जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ ताल्लुम का यूं इस्तेमाल फरमाया। आका फरमाते हैं, मन ताल्लमा लुगत कौमिन अमिन मकरहुम, जिसने किसी कौम की ज़बान सीख ली वो उस कौम की मक्कारी से महफूज हो गया। जनाब किसी कौम की ज़बान सीख ली, उस कौम की मक्कारी से वो महफूज हो गया। पता नहीं क्या वो चीटिंग कर जाए, इसलिए ज़बानें सीखना ज़रूरी है। ज़बान कोई सी भी हो आप सीखिए, ज़रूरी नहीं कि आप अरबी ज़बान ही सीखिए, आप उर्दू सीखिए, आप अरबी सीखिए, आप इंग्लिश सीखिए, आप फ्रेंच, तेलुगु, मलयालम सीखिए। दुनिया भर में 2462 ज़बानें बोली जा रही हैं। आप हो सके तो 2462 ज़बानें सीख लीजिए। और ज़बानें किसी के माई बाप की नहीं है, ये ज़बान मेरी है। इट इज़ माइन, इट इज़ माइन, ये मेरी जागीरदारी में है, इस पे मेरा हक है। ये जुमला गलत है, कोई नहीं कह सकता कि ये हमारे बाप की ज़बान है, बल्कि हक अगर ये बनता है तो हमें बनता है कि दुनिया में जितनी ज़बानें बोली जाती हैं सब ज़बानें हमारे बाप हज़रत आदम की ज़बानें हैं। आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतनी ज़बानें अता फरमाई और ऐसा इल्म दिया। फरिश्तों को इल्म दिया गया था, अल्लाह ने बहुत इल्म दिया फरिश्तों को, मगर जब हज़रत आदम को इल्म दिया, सुभान अल्लाह, जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान की पैदाइश से पहले अल्लाह ने फरिश्तों को बड़े उलूम से नवाजा था। तुम जानते नहीं फरिश्ते कितने इल्म वाले होते हैं। हजरात ये देखो, पूरा प्रशासन अल्लाह की हुकूमत का कौन चलाता है? यही फरिश्ते तो चलाते हैं। ये अल्लाह के जो सरकारी ऑफिस हैं, इन सरकारी ऑफिसों में जो पोर्टफोलियोज हैं, इन्हीं फरिश्तों के पास तो हैं। ये एक फरिश्ता है जो नबियों के पास वही लेके आता है। ये एक फरिश्ता है जो अपनी क़यादत और कमांडिंग में जनाब बादलों को चलाता है। कहाँ पानी की जरूरत है और कहाँ नहीं है, वो बादलों पर राज करता है और वो बादलों को हुक्म देता है। ये हवाओं के फरिश्ते हैं। ये पुरवाई चलाता है, वो पछादिया चलाता है, वो बादे समूम चलाता है, तो वो नसीम सहरी चलाता है। ये फरिश्ते हैं जो हवाएं चलाते हैं। अल्लाह शहंशाहों का शहंशाह, सिर्फ हुक्म देता है। अल्लाह हुक्म देता है, अल्लाह का हुक्म चलता है। और बस करने वाला कौन होता है? ये हजरत जिब्राइल है, ये हजरत मीकाईल है, ये हजरत इसराफील है, ये हजरत इजराइल है। और इनकी कमांडिंग में और इनकी सरपरस्ती में और बहुत सारे फरिश्ते हैं। इनके पास बहुत बहुत इल्म है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते इतना इल्म अल्लाह ने दिया है। मिसाल के तौर पे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को देखिए, उनका इल्म पूरी दुनिया में जनाबे वाला ऐसा शार्प इल्म है कि अगर एक शख्स को यहाँ तलवार से जाना है और एक शख्स को जनाबे वाला वहाँ अमेरिका से जाना है, तो इस फरिश्ते को अमेरिका के उस जाने वाले की नौइयत, कुन्नियत, माहियत, हकीकत, उसकी एक्चुअलिटी सब इसको मालूम है जनाबे वाला। ऐसा नहीं कर सकता माअल्लाह कि कहीं निशाना कहीं और जनाबे वाला तीर कहीं, ऐसा नहीं, जो है एक्चुअल में। और जनाब अल्लाह के रजिस्टरों में जिसके लिए जो कुछ जहाँ लिखा हुआ है, अगर खेत में है तो खेत में ही, अगर जनाबे वाला दरिया में है तो दरिया में ही सही। हजरात पूरी दुनिया में उसका फोटो नहीं जाता। जैसे कि हमारे मुल्क, हमारे पड़ोसी मुल्क के कुछ नाहंजार कहते हैं, कुछ बेहूदे जाहिल कहते हैं कि फरिश्ता तो एक ही है इजराइल, मगर वो एक ही जगह रहता है, बाकी पूरी दुनिया में उसके फोटो जाते हैं और उसके स्टैचू जाते हैं। झूठे हैं, नालायक हैं, नाहंजार हैं। इन पड़ोसियों को तो कुछ भी पता नहीं है जनाबे वाला, इनका तो नाम लेना ही बेहूदगी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे सारी दुनिया में अगर कोई फरिश्ता जाता है रूहें निकालने के लिए तो एक ही फरिश्ता है। क्या इल्म है और क्या पावर है इसके पास। उसी वक्त में तलवार में भी है और उसी वक्त में जनाबे वाला बेंगलोर में भी है, उसी वक्त में दिल्ली में भी है, उसी वक्त जब अटलांटिक महासागर में भी है, उसी वक्त प्रशांत महासागर में भी है, अरबियन सी में भी उसी टाइम है, उसी टाइम अमेरिका में है। ऐसा नहीं करता कि तलवार वाले से ये कह के जाता है कि तू जरा वेट कर, मैं जरा अमेरिका वाले को लेके आता हूँ, तू जरा प्रतीक्षा कर हमारी, हम जरा अमेरिका वाले को लेके आए। ना ना
ना ना, जब जनाबे वाला अंदाजा लगाओ। अब पोल पट्टी खुल गई यहाँ पर भी। एक अकीदे की बात, एक जुमला अर्ज करना चाहता हूँ। लोग कहते हैं नबी का इल्म, नबी का इल्म, नबी का पावर, नबी का पावर। जाहिल हैं, जहालतों के पुलंदे सरों पे बांधे हुए मुस्तफा के पावर को नापने तोलने की बातें कर रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। क्या शायर इस्लाम आ रहे हैं क्या? हाँ, अदब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खुशियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शाहकार तरन्नुम असद इकबाल साहिब किबला कलकत्तवी, शहंशाह तरन्नुम असद इकबाल साहब किबला कलकत्तवी, उलमाए अहले सुन्नत, जामिया अमीनुल बनात, फरोगे तालीम कॉन्फ्रेंस, जामिया अमीनुल बनात, शाहकार तरन्नुम असद इकबाल साहिब किबला कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह पर ऐसे ही आराम और इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। बिल्कुल उसी स्टाइल, उसी शान के साथ, जिस शान के साथ आप बैठे थे, बैठ जाए। खुशखबरी आपके लिए, जिसकी राह में पलके बिछाए बैठे थे, वो खास मेहमान स्टेज पर विराजमान हुआ। आलम इस्लाम के शोहरा आफाक, शायर इस्लाम, इज्जत माब, बड़े भाई हजरत असद इकबाल साहब हफिज़हुल्लाह ज़ुल माली, निहायत तमतराक शान और शौकत के साथ हमारे इस स्टेज पर बनफ्से नफीस हाजिर हैं। पाकीदा चेहरा देखिए, आज तक 40-50 साल को के पीरियड को फैले हुए अपने शायरी फतरत में कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बातिल के सामने सरेंडर नहीं हुए। असद इकबाल, और इन्हें वही फैजान आज तक मिल रहा है। मसलके आला हज़रत का कभी सौदा नहीं किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी असद इकबाल साहब को वही फैजान मिल रहा है। लोग सोचते हैं यार असद इकबाल 50 साल राज कर रहे हैं, 50 साल से राज कर रहे हैं स्टेज की दुनिया में। आज भी जनाबे वाला, और आज से 40-50 साल पहले भी इसी शान के साथ, ना आवाज में तगय्युर, ना स्टाइल में चेंजिंग, और ना जनाबे वाला नामवरी ताजवरी में कोई फर्क आया। स्टेज की दुनिया का बेताज बादशाह है असद इकबाल। कल भी अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखते ही रह जाओ, गाने गा रहे हैं लोग स्टेजों पे आके, गानों के स्टाइल, गजलों के स्टाइल, जनाबे वाला मुफ्ती एक दूसरे के मुंह को तकने लगते हैं कि आप करें तो क्या करें, मगर कोई बोल ही नहीं पाता। जी सबका चाहता है कुछ बोले, मगर असद इकबाल मुस्तस्ना शायर। आज तक जितने कलाम हैं सब नात के अंदाज में। सुभान अल्लाह, पढ़ने का हक हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। हाजिरी हुई, मैं मुबारकबाद देता हूँ अल्लामा असनाद रजा साहब को, उनके ज़हने, उनके हाजिर और ताज़ा और फ्रेश माइंड को, जिसके ईमा पर आज असद इकबाल साहब किबला हमारे इस बाबरकत तलवार की जमीन पर मौजूद हैं। बेशक मौलाना सुलेमान, मौलाना जीशान, मौलाना जुनैद और कारी फारूक, इन सब चार यारों को दिल की गहराई से मुबारकबाद। वाह सुभान अल्लाह, कीमती वक्त दिया, तशरीफ लाए असद इकबाल, और अभी देखेंगे गुल खिलेंगे गुलशन, इंशाल्लाह महकेंगे, नबीर आला हजरत तशरीफ लाएंगे, बारी चलेगी। ऐसे ही बैठे रहो। आज की रात फरोग तालीम कॉन्फ्रेंस के नाम कर दो, और इसी शान के साथ, अरे सोने जागने तो रोजाना लगे हुए रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी हस्तियां कभी कभी आती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां बसती हैं। बेशक हक अल्हम्दुलिल्लाह। हाजिर हैं असद इकबाल साहब। अल्लाह।
तू कब आ गया भाई? अभी तो था नहीं। ये तो सूंघ लेता, मौलाना नहीं, धोखा मत खाना। मैं अर्ज ये करना चाहता था आपसे, टाइम ज्यादा ना हो जाए, अपने मेहमान को हम परेशान ना करें। हमारा कितना रेस्पेक्ट करते हैं असद भाई, जाके बंगाल उड़ीसा वगैरह में, मुझे तो जनाबे वाला एक जियाफत इनकी बार बार याद रहती है, बार बार। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह साया देर तक रखे और आशोबे ज़माना और क़यामत आशोबियों से अल्लाह बचाए रखे। तो मैं ये अर्ज करना चाहता था, मेरी गुफ्तगू में अपनी गुफ्तगू की शुरुआत कर दूं। बावाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। सुभान मैं अल्लाह। एक बड़ा खुश्क मौजू लेके आपके बीच में हूँ। मैं जनाब वाला हर एंगल से, हर स्टाइल से तकरीर करने की आदत रखता हूँ। मुझ पे मेरे बुजुर्गों का फैज़ान बहुत है, मगर आज मैं इसी रूट को यूज कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अरे माशाअल्लाह, हमारे इस पूरे इलाके की अजीम शान जलील क़द्र हस्ती और बड़ी अजीम शान शख्सियत के मालिक क़िबला अल्लामा मौलाना मोहम्मद एहसान रज़ा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे स्टेज की जीनत बन गए और जलसे की इज्जतों में चार चांद लगा दिए ना। सुभान अल्लाह। स्टेज की बहारों में इसकी रानाई में, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी रानाई में डबल रोल प्ले कर दिया अल्लामा मौलाना मोहम्मद एहसान रज़ा दामदिल्लहुल आली की आमद बाबरकत में। अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हो गए। मैं चाहता हूं मैं अपनी मंजिल की तरफ कशा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पहुंचूं। मैं ये कहना चाहता था आपसे, तवज्जो है आपकी? बावाज़ बुलंद कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी इंसान पैदा होगा बाद में, अभी इंसान की पैदाइश बाद में होगी। पहले हम बात फरिश्तों की करते हैं। अल्लाह ने उन्हें ऐसा इल्म दिया और ऐसा पावर दिया कि अब तुम देखो ना सही, कल्पना भी नहीं कर सकते। देखो ऐसा है, इल्म इतना जरूरी है, इल्म कैसा कंपलसरी है। इल्म जनाबे वाला कैसे जनाबे वाला एक जुज़्वे ला यनफक है। हज़रात मोहतरम समझो इस चीज से, अल्लाह ने फरिश्तों को इल्म दिया। अल्लाह ने कोई नबी ऐसा नहीं जिसे अल्लाह ने इल्म से मालामाल नहीं किया। कोई रसूल ऐसा नहीं जिस रसूल को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म से मालामाल नहीं किया। और कोई नबी का गुलाम ऐसा नहीं जिस गुलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म न दिया हो। मगर गुलामों ने दो तरह से इल्म लिया, कभी मदरसों में बैठ के लिया और कभी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने बतौर इल्का उसके दिल पर इल्का फरमाया और इल्म हासिल हो गया। जैसे हमारे भारत में एक शख्सियत रहती है जिसे आप और हम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुहसिन अहले सुन्नत आफते जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद बरेलवी के नाम से जानते हैं। 8 इल्म पढ़े थे या 10 पढ़े थे मदरसे में? नहव पढ़ा था, सर्फ पढ़ा था, बलागत पढ़ी थी, मानी पढ़ा था, फलसफा पढ़ा था, कदीमा पढ़ा था, जदीदा पढ़ा था और जनाबे वाला इंशा पढ़ी थी और हजरात तफसीर पढ़ी थी, उसूल तफसीर पढ़ी थी, हदीस पढ़ी थी, उसूल हदीस पढ़ी थी। ये सब उलूम जो मदरसों में आम तौर से कॉमन है, वो इल्म पढ़ने वाले आला हजरत। लेकिन जब मैदान अमल में आते हैं तो खुदा की इज्जत की कसम, जमीन हैरान है, आसमान हैरान है, पूरा अकादमिक वर्ल्ड अपने मुंह में अपने दांतों तले उंगली दबाए पड़ा है। सारा जमाना अश कर रहा है कि आला हजरत जो मदरसे में बैठ के 8 या 10 या 12 इल्म हासिल करते हैं, उन्होंने ये क्या किया? ये बात कहां से पैदा हुई? अरे 10 इल्मों में नहीं, उन्होंने 15 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में नहीं, उन्होंने 20 इल्मों में नहीं, उन्होंने 25 में भी नहीं। दुनिया की यूनिवर्सिटियों में 36 इल्म पढ़ाए जाते हैं। ओनली 36 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज की एजुकेशन है ऑल ओवर यूनिवर्स। चाहे वो जनाबे वाला ऑक्सफोर्ड हो, चाहे वो कैम्ब्रिज हो, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, जमाने की कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, हर जगह 36 इल्म उसूली तौर पर पढ़ाए जाते हैं। इन 36 में से ब्रांचेस फूटती हैं, मगर ओरिजिनली बेसिकली
36 इल्म है, मगर जनाब वाला पूरा अकादमिक वर्ल्ड 36 में सिमट जाता है, मगर कुर्बान बरेली के इमाम अहमद रजा पर सटके जाऊं उनके और निछावर हो जाऊं। आला हजरत इमाम अहमद रजा की इल्मी सलाहियतों और इस्तेदादों पर खुदा की कसम, उन्होंने 36 में नहीं, उन्होंने 40 में भी नहीं, उन्होंने 45 और 50 में भी नहीं। हजरत मोहतरम हैरान है इंजीनियरों की दुनिया, हैरान है फलसफा दानों की दुनिया, हैरान है दानों की दुनिया, टाइमिंग में एक्सपर्ट्स लोग हैरान है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैरान है, उनके चांसलर हैरान है, जर्मनी से लेकर इंडिया तक जनाब वाला पूरा इल्मी समाज अल्हम्दुलिल्लाह हैरान है कि मदरसों में 8, 10 या 12 या 15 इल्म हासिल करने वाला ये किस तरह से 56 इल्मों में 1200 किताबें लिख देता है। 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में इमाम अहमद रजा ने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया है। मैं यही कहना चाहता हूँ, एक वो इल्म है जो मदरसों में बैठ के आता है और एक वो है जो अल्लाह अपने मोमिन बंदों के दिलों पे देता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फरोगे तालीम कॉन्फ्रेंस, जामिया अमीनुल बनात, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मेरी बात वाकयात से मावरा है, मेरी बातों में वाकयात और इंसिडेंट नहीं है, घटनाओं और दुर्घटनाओं का बयान मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक इजराइल, एक मौत का फरिश्ता, अल्लाह आबाद रखे गुलाम नबी भाई, माशाअल्लाह संभल से भी, अरे कहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हाजिरी हो गई लोगों की। असद इकबाल साहब क्या जलवे हैं आपके नाम में कि संभल हमारा, ये गुलाम नबी यासीन भाई पूरी की पूरी टोली यहाँ मौजूद है और पूरे इलाके से चौधरपुर से भी आए होंगे, ओबरी से भी आए होंगे और जनाब वाला यहाँ नीली खेड़ी और सैंतली और क्या क्या नाम है सब, अड़न बड़न मढ़न और सबसे आए होंगे पूरे इलाके से। मुबारकबाद देता हूँ जहाँ जहाँ से भी तशरीफ लाए हैं। अल्लाह सबको आबाद रखे और अल्लाह सबके घरों में बरकतें अता फरमाए। अच्छा है, खुश रहो, आबाद रहो। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक इजराइल, एक मौत का फरिश्ता जब इतना पावर रखता है, सारे जमाने में एक साथ जहां से चाहे, जिसको चाहे और जहां लिखी हुई है वहां से एक वक्त में उचक ले। जरा जोर से, जरा जोर से। सुभान अल्लाह। सारे लोग पूछते हैं नबी ये पाक का पावर, व्हाट्स द पावर ऑफ होली ट्रैफिक। अरे पागल हो गए हो, अक्लें नहीं है, दिमागों में ये भेजे नहीं है या सीनों में दिल नहीं है। अबे जब तुम एक फरिश्ते का इल्म नहीं नाप सकते, एक फरिश्ते के इल्म की कल्पना नहीं कर सकते, तो इस फरिश्ते के इमाम के मुस्तफा जाने रहमत के इल्म की कल्पना कैसे कर सकते हो? तुम कैसे कह सकते हो कि मुस्तफा का इल्म ऐसा है? ये एक फरिश्ता है। अभी मैं और थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ये देखो पुरवाई चला रहा है, वो पछादिया चला रहा है, ये देखो बादे समूम चलाता है, तो ये बादलों को ले जा रहा है। अब जनाबे वाला अचानक एक मंजर फूटा, अचानक जनाब वाला एक इंसिडेंट अक्यूर होता है। बादल बड़ी तेजी से फतेहपुर मलकपुर पे बनने लगते हैं, बहुत तेजी से, और जनाबे वाला फतेहपुर मलकपुर वालों को ऐसा लगा कि हाय हाय झूम के पड़ेगी बारिश, बहुत अच्छी बारिश होगी। हजरत मोहतरम बड़े खुश थे, पाक बड़े गए लोग कि बारिश अब होने वाली है जनाबे वाला। मगर वो बादल धीरे धीरे उड़ा, लोदीपुर आ गया और लोदीपुर वाले जोश में आए और जनाबे वाला वो घी के चिराग जलाने लगे कि अब हुई तब हुई बारिश। मगर वो तो वहां से भी उड़ गया, चौधरपुर की तरफ आ गया। चौधरपुर वाले समझे कि अब हमारी बारी है, मगर अचानक बादल देखते ही देखते जनाबे वाला जोए की जमीन पे बरस पड़े, पानी वहां नाजिल हो गया। अमरोहा की जमीन पे पानी बरस गया। उठे थे फतेहपुर से, बरस पड़े अमरोहा में, उठे थे जनाब रामपुर से और बरस पड़े धामपुर में, उठे थे धामपुर से और बरस पड़े रामपुर में। जानते हो ये क्या होता है? ये उन फरिश्तों का इल्म है और इनकी हार्ट लाइनों का कमाल है। बड़ा गहरा संपर्क रहता है इन फरिश्तों के बीच में जनाबे वाला। इसके अधिकारी, उसके अधिकारी, ये प्रशासन है, शासन अल्लाह का है, शासन मोहम्मद रसूलुल्लाह का है। हर
शहंशाहों का शहंशाह अल्लाह है और उसके प्रधानमंत्री मोहम्मद रसूल अल्लाह है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से आमिना का लाल 12 रबीउल अव्वल को खाबदाने गीती पे तशरीफ लाता है। तभी तो बरेली वाले बोले सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं सरवर कहूं के मालिको, मगर ऐसा प्रधानमंत्री नहीं जैसे जमानों के प्रधानमंत्री होते हैं। ये प्रधानमंत्री सुभान अल्लाह ऐसी शान वाला प्रधानमंत्री है मेरा मुस्तफा जान रहमत कि जहां गया बरकतें साथ साथ चली जाती हैं, रहमतें साथ साथ जाती हैं, इनकलाब आते हैं, क्रांति फूटती है। बरेली वालों को कहना पड़ता है ऐसा प्रधानमंत्री है हमारा कि नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम डाल गया। सारे पोर्टफोलियो साथ साथ चलते हैं, लिखने वाले साथ साथ चलते हैं, पता नहीं क्या हुक्म नाफिज हो जाए, क्योंकि उनका तो हुक्म चलता है जमीनों और आसमानों बयाबानों और जंगलों में एक हुक्म चलता है आमिना के लाल का। बहरहाल ये एक तवील बहस है और पूरी तकरीर कई घंटे की मुतकादी है। मैं जनाबे वाला इस मौजू को टच नहीं करना चाहता, बस ये कहना चाहता हूँ कि शासन अल्लाह रसूल का है और रसूल पाक के गुलाम जैसे गौसे आदम 11वीं वाली आज 11वीं है ना। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। हम 11वीं वाले सीने चौड़े हैं 56 के नहीं 72 इंच के हैं हमारे, कि हम 11वीं वाले, हम नसीब से 12वीं वाले, हम नसीब से 6वीं वाले। सुभान अल्लाह सुभान जोर से सुभान अल्लाह। फटे सीने फटे, आंतों में दर्द हो मगर हम नसीब से 11वीं वाले हैं, हम नसीब से 12वीं वाले हैं। 12वीं वाला हमारा, 11वीं वाला हमारा। वो गौसे आज़म मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीना, गौसे पाक अल्लाह जज़ाए खैर से नवाजे। वो गौसे आज़म मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जीना, गौसे पाक महबूब सुबहानी गौसे समदानी शहबाद लामकानी सुल्तान सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़ा पीर रोशन ज़मीर। जानते हो क्या है? वो मुस्तफ़ा के मंत्री मंडल का एक मंत्री है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। ये गरीब नवाज क्या है? मुस्तफा के मंत्री मंडल के मंत्री हैं। ये साबिर भैया क्या है? मुस्तफा के मंत्री मंडल के एक मंत्री हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये जनाबे वाला मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, ये सैयद सालार मसूद गाजी, मखदूम शामीना, शाह अलाउल हक पंडवी, ये बदायूं के छोटे बड़े सरकार, ये अमरोहा के छोटे अमरोहा के शाह विलायत जनाबे वाला, ये दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और हमीदुद्दीन नागौरी, ये बंदा नवाज गए सुतराल, मखदूम महाइम शरीफ, शाह तवक्कुल मस्तान बेंगलोरी, शाह आलम अहमदाबादी, खुतबे आलम अहमदाबादी। जानते हो क्या है? ये सब के सब मुस्तफा जान रहमत के मंत्री मंडल के मंत्री हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं लिया वजीरान फिल अर्द व लिया वजीरान फिस समा, प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहला मंत्री मंडल भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया जमाने के पर्दे पर। और ऐसा शराबे वाला उनके किंगडम में 36 राज्य नहीं है लोगों, उनके किंगडम में 40 राज्य नहीं है लोगों, उनके किंगडम में यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है, उनके किंगडम में ओनली 2 स्टेट्स आर देयर इन द किंगडम ऑफ होली प्रॉफिट। मेरे नबी के किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं, एक राज्य का नाम जमीन है और एक राज्य का नाम आसमान है। यहाँ पर भी बरेली के ताजे शरीयत कहते हैं जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, वो उनका राज है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जामिया अमीनुल बनात, हज़रत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी मुरादाबादी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पानी की जरूरत अमरोहा को थी, बेशक पानी की जरूरत अमरोहा को थी, जोया को नहीं। बादल वहां रामपुर में बने, बादल धामपुर में बने, मगर हुआ क्या? दोनों बादलों और हवाओं के फरिश्तों के अधिकारियों में हॉटलाइन संपर्क, कम्युनिकेशन सिस्टम वीक नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग, उनके डिब्बों में आग नहीं लगती।
ये तुम्हारी मादी दुनिया की मादी मशीनें हैं, जहाँ आग लग जाती है, जहाँ लाइनें फट जाती हैं, जहाँ पाइप उजड़ जाते हैं, जहाँ माइक गिर जाता है, जहाँ जनाबे वाला माइक गिर जाता है, जहाँ होठों से कभी कभी माइक चिपक जाता है, ये तुम्हारी दुनिया की मादियत है। मगर वहाँ उन मशीनों में आग नहीं है हजरत, हॉटलाइन है, अधिकारियों में संपर्क होता है। और बड़े अधिकारियों ने बड़े अधिकारियों को बताया, चौधरपुर को जरूरत नहीं है पानी की, पाकपड़े को जरूरत नहीं है पानी की, समाथल को जरूरत नहीं है पानी की, तलवार शहबाजपुर को जरूरत नहीं है पानी की। अगर पानी की जरूरत है तो अमरोहा वालों को है। फौरन हवाओं के फरिश्तों को, उनके अधिकारियों को कहा जाता है, हवाओं को जल्दी से उड़ाओ, मिनटों सेकंडों में ये बादल अमरोहा के उफुक पे पहुंचना चाहिए। और अमरोहा के उफुक पे पानी बरसा और जनाब बादल पहुंचा, फौज वो फौज दर फौज, बादलों की टुकड़ियां अमरोहा के आसमान पे इकट्ठी हो जाती हैं। हुक्म खुदा होता है, ठीक है जनाबे वाला। और फिर जनाब ओके सिस्टम, जनाबे वाला सिस्टम को ओके कर दिया जाता है, बारिश बरसना शुरू हो जाती है। अगर दूर से कहिए सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, कुर्बान इन फरिश्तों के इल्म पर। अभी आदम आए नहीं, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। अभी इंसान आया नहीं, मगर अल्लाह ने अपने फरिश्तों को इल्म से मालामाल कर दिया है। एक बड़ा खुश्क और बड़ा रफ मौजू आपके सामने रखा है। आज किसी वाक़े से जरा परे हटके जनाबे वाला, हाँ हाँ, जरा वाक़यात से जरा परे हटके आज मैं एक खुश्क मौजू को जनाब आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी आदम आए नहीं है, जरा फरिश्तों के इल्म की एक कल्पना कर लीजिए। बस एक फरिश्ते का जिक्र और करना चाहता हूँ, फिर बात आगे बढ़ाऊंगा। एक फरिश्ता और नोट करो, ये फरिश्ता है जो माओं के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाता है। ये जनाब कितने इल्म वाला फरिश्ता है। अल्लाह तो हुक्म देता है, फरिश्ता जनाबे वाला बार बार पूछता है, अल्लाह से पूछता है मुखल्लका और गैर मुखल्लका, अल्लाह ये पैदा होगा या नहीं होगा। निदा आती है हातिफ गैबी से, गैर मुखल्लका, पैदा नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर अब नहीं होगा। कोई आबा, कोई बाबा, कोई ढाबा, कोई तावीज़ और जनाबे वालों किसी किस्म की कोई दवाई कारीगर साबित नहीं होगी। तावीज़ पे तावीज़, तावीज़ पे तावीज़, मियाँ हजूर, मियाँ हजूर, मियाँ हजूर, जनाबे वाला राग 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 लाते रहो, राग मियाँ करते रहो, मगर कोई तावीज़ काम नहीं आएगा। नहीं होगा तो नहीं होगा, मुखल्लका और गैर मुखल्लका, पैदा होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो जनाबे वाला इरशाद हुआ पैदा होगा तो जनाबे वाला फिर एक जनाबे वाला एक फरिश्ता दूसरा इसकी क़यादत में अलग से रजिस्टर तैयार करता है। एक रजिस्टर वो है जो बन चुका है लौह महफूज में, रजिस्टर एक नहीं है, रजिस्टर पे रजिस्टर, कॉपी पे कॉपी, नकल पे नकल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम क्या समझते हो नकलें सिर्फ तहसीलों में मिलती हैं? मुहाफिज खाने में मिलती है? तुम्हें तो जनाबे वाला यही पता होगा कि नकल तो यहाँ मिलती है। अरे यहाँ नकल पे नकल है, हर एक के पास रिकॉर्ड है, फिर ऊपर से ये दो हैं। वाह 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 वाह, सीसीटीवी कैमरे की तरह क्या कर रहा है, जी 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 जी, क्या बोल रहा है, आंखें किधर, कान किधर, मुंह किधर, ज़ुबान किधर, तवज्जो है? ये है तो जनाबे वाला यहाँ तो रजिस्टरों पे रजिस्टर है, तो फिर उस रजिस्टर पे लिखा जाता है इसकी उम्र कितनी होगी, ये क्या करेगा, ये कहाँ जाएगा, कैसा करेगा, ये चंडीगढ़ चला जाएगा, ये दिल्ली भाग जाएगा, ये अमृतसर चला जाएगा, ये बेंगलोर में काम करने जाएगा, फिर क्या करेगा, उसमें सब कुछ लिख दिया जाएगा। तवज्जो है आपकी? अब जनाबे वाला ये बच्चा जो मुखल्लका है तो अब अल्लाह हुक्म देगा होगा पैदा, तो अब उस फरिश्ते का कमाल देखो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, अरे तुझे अपनी बड़ी रहती है यार। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो असल बात पे भी नहीं आया, मगर इसे तो नारा लगाना ही है, इसे अपनी हाजिरी दर्ज कराना है। अल्लामा असनाद रज़ा यहाँ जिम्मेदार हैं, अब नारा मत लगाइए, ये समझ जाएंगे तुझे करना क्या है। अब खामोश बैठा रहे ऐसे ही, थोड़ा सा हल्का रख लो, लगवा दो नारा।
बच्चे कह रहे हैं नारा इसका अच्छा लगता है। यार जिंदाबाद, ताज शरिया, ताज शरिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली, बैठ जा। बच्चों ने लगवा दिया इनका एहसान मान। बच्चा है ये थोड़ा गरीब, ये इसके चूल्हे जलते ही ऐसे हैं, इसलिए जब नारा लगाया कभी कभी तो 10-20 रुपए दे के इसका रगड़ा काट दो। मैं ये कहना चाहता था मेरे बुजुर्गों, अभी मेरी तकरीर शुरू हो रही है, तुम परेशान तो नहीं हो? असद भाई आ चुके हैं, मैं 1 घंटा बोलूंगा, ज्यादा नहीं। और 1 घंटे में टाइम ही कितना बचा है? 15 से 20 मिनट। जनाब वाला मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अब उस फरिश्ते का कमाल देखो।